Morning student. The next topic is second order derivative in CRT exercise 5.7 page number 183. So what do you understand by second order derivative and higher order derivative? So let y is equals to f of x be the given function where x is the independent variable and y is the dependent variable. Then change in y with respect to x, that is dy by dx or d by dx of y or f base x or y1 or y prime. These are the symbolization of the first derivative of y बराबर fx with respect to x. सो अगर y बराबर fx कोई फंक्शन है जहां x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तब y में x के रेस्पेक्ट चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय dy by dx, where dy by dx is the symbolization, that is d by dx of y और y का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव. सो dy by dx और dy by dx of y और f base x और y1 और y prime. These are the representation of first order derivative of y बराबर fx. Similarly, d2y by dx2 of y, this is the second order derivative, or d by dx2, d2y by dx2 of y. That is also representation of second order derivative. f base x को f double base x और y2 और y double prime. These are the representation of second order derivative. And similarly, if we have to find third order derivative, then we will write d3y by dx3 or d3y by dx3 of y or f triple base x or y3 or y triple prime. These are the notation of third order derivative. Now if we have to find the nth order derivative, then it is represented by dny by dxn or dn by dxn of y or f nx fnx or yn or y prime n. These are the nth order derivative. So this is the symbolization of first order derivative, this is the symbolization of second order derivative, this is the symbolization of third order derivative, and these are the symbolization of nth order derivative. Now let us consider some example and how we will find the higher order derivative of the given function. So NCERT exercise 5.3, in exam you will get at least one question on second order or higher order derivative. So the first question, find the second order derivative of the given function. First function is given x square plus 3x plus 2. Very simple algebraic expression is given, and let me consider it. Y is equals to x square plus 3x plus 2. This is the function where y depends upon x. X is independent variable and y is depending on x. So change in y with respect to x will be d by dx of y. This is the first order derivative. So how we will write? D by dx of x square plus d by dx of 3x plus d by dx of 2. So because the given function is additive form of three functions, so derivative of first plus derivative of second plus derivative of third. नाउ यहाँ कौन कौन से फॉर्मूले यूज आ रहे हैं? सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन. सो आप जहां फॉर्मूला यूज ले रहे हैं उस स्टेप के सामने आपको फॉर्मूला यूज लेना. तो सबसे पहला फॉर्मूला जो यूज आ रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन. अगर एक्स की पावर एन कोई पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर है
तब x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू x की पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 इंटू x की पावर 2 माइनस 1 प्लस सेकेंड देखिए इधर दिस इज द कांस्टेंट इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव। तो सेकंड फार्मूला यहाँ लिखेंगे dy dx ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट को हम बाहर लेंगे dy dx ऑफ f ऑफ x। सो फंक्शन के डेरिवेटिव को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, तो 3 बाहर आ गया dy dx ऑफ x, x का मतलब x की पावर 1, x का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। और तीसरा फॉर्मूला है कि dy dx ऑफ एनी कांस्टेंट, अगर केवल कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। सो दिस इज द 0। सो फाइनली आंसर 2x प्लस ऑफ 3 into 1 प्लस ऑफ 0 दैट इज 2x प्लस 3। This is the dy by dx. This is the first order derivative we can say. Now इसको अपन नंबर 2 पुट अप कर लेते हैं। आपने को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज dy by dx ऑफ dy by dx। dy by dx आपका फर्स्ट ऑर्डर है, उसका फिर से x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो dy by dx ऑफ dy by dx, जिसको लेटर ऑन आप देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ क्या करेंगे 2 को बाहर ले लेंगे dy dx ऑफ x प्लस dy dx ऑफ 3। अगेन सी 2 कांस्टेंट एज इट इज, x का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट का 0, और इसको लिख देंगे अपन d2y by dx2। dy dx ऑफ dy by dx मतलब dy by dx का फिर से x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव, जिसको ऑर्डर में अपन लिखते हैं d2y by dx2। इसको ध्यान रखिए कभी भी d स्क्वायर y by dx स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, इट इज रिड आउट एज d2y by dx2 और d3y by dx3 और d4y by dx4 और dny by dxn। This is the way of reading how we will pronounce these. So d2y by dx2 means this is the second order derivative और second order derivative क्या हो रहा है 2। अब इस क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि विच ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी 0। तो अगर मैं एक बार फिर से अगर इसका डेरिवेटिव करता हूं, क्योंकि राइट हैंड साइड में केवल कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है, तो मैं क्या करता हूं अगर dy by dx ऑफ d2y by dx2 का फिर से अगर डेरिवेटिव करूं मींस dy by dx ऑफ 2, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो रिवर्स ऑर्डर में dy by dx3 0 आ रहा, मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इस क्वेश्चन का 0 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि विच ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 0। तो आप क्या करेंगे डेरिवेटिव करते रहे, और जहां डेरिवेटिव कंप्लीट फंक्शन का 0 आ जाता है उसका ऑर्डर देखना है, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका 0 बन रहा। दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट का मैंने एक्सटेंशन बताया। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, किसके रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, किस ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है, और कौन कौन से फॉर्मूले आप यूज ले रहे हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, y बराबर x की पावर 20। तो y डायरेक्ट x पे डिपेंड कर रहा है, तो आप क्या करेंगे dy by dx बराबर dy by dx ऑफ x की पावर 20। कौन सा फॉर्मूला यूज आ रहा है dy by dx ऑफ, यहाँ फॉर्मूला यहाँ लिख दे dy by dx ऑफ x की पावर n, x की पावर n माइनस 1 implies that dy by dx हो गया आपका n 20 बाहर आएगा, x की पावर 20 माइनस 1, so 20 x की पावर 19। This is the question number second. Similarly question number third, y is equals to x cos x। देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म है, सो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। अभी अगर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना तो फिर से लिखेंगे d2y by dx2 बराबर 20 एज इट इज है, x की पावर 19 का 19 into x की पावर 18, एक कम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको अपन फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड। तो भाई प्रोडक्ट रूल क्या होता है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, दिस इज द प्रोडक्ट रूल। ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले लिखना। नाउ
dy by dx, y का x के रेस्पेक्ट dy by dx, x एज इट इज रखा, cos x का माइनस ऑफ sin x प्लस cos x एज इट इज, x का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव 1। अब अगेन आपको क्या करना है, यहाँ ये दो फंक्शन फिर प्रोडक्ट में आ रहे हैं सिंगल, फिर से डेरिवेटिव निकालना है, तो dy by dx का तो d2y by dx 2, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर के x को फर्स्ट sin x को सेकंड, तो x एज इट इज sin x का cos x प्लस sin x एज इट इज इनटू x का x के रेस्पेक्ट 1 प्लस ऑफ cos x का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ sin x। सो दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। सो माइनस ऑपरेट करेंगे तो माइनस x cos x माइनस ऑफ sin x माइनस ऑफ sin x, नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस x cos x माइनस ऑफ 2 sin x। दिस इज द सेकंड ऑर्डर derivative of the given question. Now similarly question number 4. Question number 4 is y is equals to log of x. y is equals to log x. Direct क्योंकि नेचुरल लॉगरिथमिक है इसलिए बेस नहीं लिखा, फिर भी अपन इसको मान के चलेंगे कि बेस e है, e के अलावा कोई भी बेस है then it will be given. Now y is equals to log x. So dy by dx will be equals to log x का डेरिवेटिव 1 upon x. ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर से डेरिवेटिव निकालना तो dy by dx2 will be equals to 1 upon x का क्या होगा, इसको लिख सकते हैं x की पावर -1, that is n is your -1. So n बाहर आएगा into x की पावर n -1. So minus of x की पावर -2. So -1 upon x square. This is the second order derivative. So d2y by dx2 is your -1 upon x square. So please pause the video and note down the question. Then question number 5, y is equals to x cube log x, x cube log of x. देखिए अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट इज x क्यूब, सेकंड इज log x, इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड। सो बाय प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लिखिए पहले। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, दो फंक्शन जो प्रोडक्ट में है, एक फर्स्ट है दूसरा सेकंड, इनका होल डेरिवेटिव फर्स्ट को एज इट इज रखना, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को एज इट इज रखना और फर्स्ट का डेरिवेटिव। दिस इज द फॉर्मूला। सो dy by dx will be equals to x cube as it is into dy by dx of log x। तो एक बार मैं लिख देता हूं, आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखना, फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। सो dy by dx जो है वो किसके बराबर होगा, x क्यूब इनटू log x का 1 upon x प्लस log x एज इट इज x क्यूब का 3x स्क्वायर। अगेन फिर से डेरिवेटिव निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx, एक बार सॉल्व कर ले, dy by dx ये आपका x क्यूब अपॉन x, ये x स्क्वायर हो गया और ये हो गया 3x स्क्वायर इनटू log of x। यहाँ देखिए d2y by dx2 निकालेंगे तो x स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा प्लस 3 आपका एज इट इज कोएफिशिएंट बाहर ले लेंगे, x स्क्वायर को फर्स्ट और log x को सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो x स्क्वायर आपका एज इट इज है log x का 1 upon x प्लस log x एज इट इज x स्क्वायर का into 2x। दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। So please pause the video and note down. Then question number 6. 6 is y is equals to e raised to the power x sin 5x. This is the again product of two function and function of function is also. So इसको first मानेंगे और इसको second. So dy by dx will be, देखो product rule लगाएंगे, e की power x into dy dx of sin x plus sin 5x, sin 5x into d by dx of e की power x exponential. So this is the first into second derivative plus second into first derivative। एक बार आपको इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना। Now dy by dx is equals to exponential function as it is, sin 5x का डेरिवेटिव होगा cos 5x और 5x का 5। So ये
प्रोडक्ट में आ गया फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड 5x को एज इट इज रखेंगे इंटू e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। सो ये इसका डेरिवेटिव हुआ फर्स्ट इंटू सॉरी क्या लिखना था आपने को e की पावर x आपका एज इट इज है sin 5x का cos 5x और 5x का 5 प्लस sin 5x एज इट इज है और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है तो यहाँ फिर से अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए फिर से प्रोडक्ट रूल यूज लेंगे दोनों पर। तो d2y by dx2 तो नोटेशन है सेकंड ऑर्डर। आप देखो 5 अपन ने कांस्टेंट कॉमन ले लिया e की पावर x को फर्स्ट इनटू cos 5x का माइनस ऑफ sin 5x और 5x का इनटू ऑफ 5। तो फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड मतलब cos 5x इनटू e की पावर x का e की पावर x। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव हुआ। फिर इस पर फिर वापस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो प्लस ऑफ देखो sin 5x आपका एज इट इज है इनटू e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x को अपन एज इट इज रखा sin 5x का क्या होगा cos of 5x और 5x का 5। सो दिस इज द final second order derivative. Please pause the video and note down. Now next question number 7. Question number 7, e raised to the power 6x into cos 3x. Y is equals to e raised to the power 6x into cos of 3x. This is the question number 7. Again product of two function, let it, this is the first and this one is the second. So dy by dx will be equals to e raised to the power 6x as it is cos 3x का minus of sin 3x का अगेन 3 तो into of 3 कर देंगे प्लस cos of 3x एज इट इज into e की पावर 6x का e की पावर 6x और 6x का डेरिवेटिव into of 6। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेते स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ देखिए 3 बाहर आएगा e की पावर 6x into of sin 3x प्लस यहाँ 6 बाहर आ जाएगा e की पावर 6x into of cos 3x। Okay, now again using product rule, this is the first, this is the second, this is the first and this is the second, and in both term 3 and 6 are the coefficient. So d2y by dx2 बराबर 3 as it is first e की पावर 6x into sin 3x का cos 3x और 3x का 3 प्लस sin 3x is as it is e की पावर 6x का e की पावर 6x का 6। so this is the again using product rule प्लस 6 आपका as it is है again e की पावर 6x को e की पावर 6x cos 3x का क्या लिखेंगे माइनस ऑफ sin 3x और 3x का into of 3 plus of cos of 3x as it is into e की पावर 6x का e की पावर 6x into 6x का 6। So this is the second order derivative of the given function. So please pause the video and note down. Then question number 8. 8th question, y is equals to tan inverse of x. Y is equals to tan inverse of x. So tan inverse x का पहला डेरिवेटिव डायरेक्ट फॉर्मूला है ये तो 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। आप देखो 1/1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालने के लिए अपन क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं 1 प्लस x स्क्वायर की होल पावर माइनस और पूरे को ब्रैकेट में लेंगे तो यहाँ पावर 1 है ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। नाउ जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो dy by dx2 बराबर देखो इसको अपन x मान करके x की पावर n तो माइनस बाहर आया 1 प्लस x स्क्वायर की होल पावर माइनस ऑफ -1 इनटू इंटीरियर 1 प्लस x स्क्वायर का 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का 2x
So फाइनली आपका आंसर आया -2x/1 प्लस x स्क्वायर की होल पावर 2. This is the second order derivative of the given function. Please pause the video and note down. Now question number 9. Y is equals to log of log x. Y is equals to log of log x. So first derivative dy by dx और अपन y1 भी लिख सकते हैं. y1 नोटेशन थोड़ा सा चेंज करते हैं. इस log के रेस्पेक्ट 1 upon log x और इस log x का डेरिवेटिव 1 upon x. So this is 1 upon x log x. तो फाइनली आपका आंसर आया 1 upon x log of x. ओके. आप देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं, x log x की होल पावर -1. ओके. सो y2 बराबर माइनस ऑफ n इंटू x की पावर log x की होल पावर -2 इंटू इंटीरियर का डेरिवेटिव x एज इट इज log x का 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1. इस x से ये x कट जाएगा तो 1 बचेगा. तो y2 बराबर आया आपका -1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस log of x. दिस इज योर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. Similarly, question number 10. Question number 10 is sine of log x. Y is equals to sine of log x. So y1 will be sine के respect cos of log x और log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 upon x. So this is finally cos of log x whole upon x is your first order derivative. Then second order derivative numerator upon denominator form. तो denominator का whole square denominator into numerator cos log x का minus of sin log x और log x का into 1 by x. So denominator into numerator का derivative minus numerator cos of log x into denominator x का derivative x के respect 1. So this is your second order derivative. So please pause the video and note down. Question number 11. Find if y is equals to 5 cos x minus 3 sin x, then prove that d2y by dx2 plus y is equals to 0. ये हमें प्रूव करना है. So given function है y is equals to 5 cos x minus 3 sin x. इसको नंबर 1 पुटअप करते हैं. ध्यान रखिए y की वैल्यू ये है. So dy by dx मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा तो 5 cos का क्या होगा माइनस ऑफ sin x माइनस 3 sin x का cos x. दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर फिर से निकालेंगे तो dy by dx2 ये -5 तो एज इट इज sin x का कितना हो जाएगा cos x minus 3 एज इट इज cos x का कितना होगा माइनस sin x तो ये प्लस sin ऑफ 3x हो गया. नाउ d2y by dx2 अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं तो 5 cos x minus 3 sin x आ जाता. आप देखिए 5 cos x minus 3 sin x व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल्स टू y. तो मैं इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. ऐसा आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि किसी स्टेप पर ऑन डिराइविंग आपको कोई प्रीवियस स्टेप वापस यूज आएगी. तो 5 cos x minus 3 sin x की वैल्यू y है तो राइट हैंड साइड में माइनस y हो गया. माइनस बाहर है. अब माइनस y को राइट से लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो d2y by dx2 plus y बराबर 0 आ जाएगा. यही हमें प्रूव करना है. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर आपका 11th है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. अगेन 12th में क्या कहा है
अगर y is equals to cos inverse x given है, then second order derivative that is d2y by dx in term of y alone निकालना है. So y is equals to cos inverse of x. This is the cos inverse x दे रखा है. तो dy by dx और y1 cos inverse x का डेरिवेटिव -1 upon under root 1 minus x square डायरेक्ट. cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है. आप चाहे साइड में यहाँ फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि d by dx ऑफ cos इनवर्स x जो है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है. इसके पहले याद रखने के लिए मैंने बताया था कि sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और cos इनवर्स x का केवल माइनस चेंज होता है. तो sin इनवर्स x और cos इनवर्स x दोनों के आप एक साथ याद रख सकते हैं. sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और cos इनवर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. सो दिस इज द y1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू y1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, राइट में -1 हो गया. अब इसको अपन फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान करके अगर डेरिवेटिव करें तो अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर तो एज इट इज इनटू y1 का कितना हो जाएगा y2 प्लस फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड दैट इज y2 इनटू अंडर रूट का क्या होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 का 0 और x स्क्वायर का -2x और राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा. सो दिस इज योर डेरिवेटिव फाइनली कितना आया अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर y2 प्लस y1 इनटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू यहाँ पर -2x लिखूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया. दिस इज द राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 0. सो this is your value. now under root 1 minus जो x square है उसको आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज यही आपका आंसर है अभी कि अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू d2y by dx2 प्लस dy by dx इनटू minus of x upon under root 1 minus x square is equals to 0. This is your answer. So please pause the video and note down.